Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing fine. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and today we'll discuss poem number 5, that is The Feet, written by Ahmed Nadeem Kasmi. Now, you might have been struck by the name. This name is quite familiar to you people, or at least to Pakistani readers, because this name is actually the name of a Pakistani Urdu poet, or he had written number of dramas, and if you could recall, on PTV there used to be a drama Kasmi Kahani. So that was also written by Ahmad Nadeem Kasmi and quite a famous one. I don't know whether you people have gone through or you have ever watched that dramas. It used to be played in the form of a series, but here we are concerned with his poetry, though basically his poem or his poetry is written in Punjabi or Urdu, but this very poem, The Feet, has been translated to you people. So the original poem is in Urdu and this is a translated version titled The Feet. Feet मतलब चोगा, मतलब वो खाना जो फीड करती है या जो परिंदे जो हैं चोंच में लाके अपने बच्चों को खिलाते हैं, ठीक है। तो दिस वेरी पोएम इज एक्चुअली अबाउट द लव ऑफ अ मदर जो होती है, माँ जो होती है, उसकी मोहब्बत को डिपिक्ट किया गया है यहाँ पर, और कैसे माँ जो होती है अनटायरिंगली शी टेक्स केयर ऑफ हर किड्स and she does not even know that whether these kids would be with her or uh, would or any assistance in her life. But even then, without the hope of any regain, she is ready to serve her kids, whether it is the mother from the human beings or mother from the any being. Let's say here he is talking about mother of of sparrows. Okay, actually it is a sparrow who has very young ones. So let's see what the writer has to say. I'll read it first all through and then we'll be reading it line by line. Holding a grain of millet in a beak, the mother sparrow has come to feed. The young ones are so tiny and small, from head to toe they are weeds. When they cry, one grain to be fed to the 10 young ones, to whom the mother sparrow should feed. Conjoining beak with whom should she solace? Fishing the atom, you have learned to weep and wail in a loud tone, splitting the grain. You have learned to set life on foot. Could you split the grain? One grain to be fed to the 10 young ones. Now, I have read this poem, and you can see that this poem is quite melodic. There is a musical beat in it. You can read it aloud with a kind of a rhythm, though breaks in it, because there are certain lines which are quite long, the others are short, and there is modulation in the meter and the rhythm. Now let's read it line by line and explain it. Holding a grain of millet, millet कहते हैं बेटा अनाज के दाने को, ठीक है, grain मतलब दाना, in her beak, the mother sparrow has come to feed. यानी कि मदर स्पैरो जो है वो अपनी चोंच में एक अनाज का दाना लेकर आई है, मिलेट का दाना, और वो किसके लिए आई है? वो अपने बच्चों को फीड कराने के लिए, खाना खिलाने के लिए, उनको दाना चुगवाने के लिए आई है. द यंग वंस आर सो टाइनी एंड स्मॉल. उसके जो छोटे बच्चे वो इतने छोटे हैं, इतने स्मॉल है, फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीक्स. यानी कि उनका पूरा जो मुजस्सम जिस्म है, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक चोंच ही है जो हर वक्त खुली रहती है. व्हेन दे क्राई, जब वो ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं या उन्हें बहुत भूख लगती है, वो अपनी माँ से कहते हैं वो खाएं. कहने का मतलब ये है कि छोटे जो बच्चे होते हैं टोटली माँ पे डिपेंडेंट होते हैं, और बहुत छोटे बच्चे अगर स्पैरो के बच्चे या किसी के भी, तो उनकी बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? उनको हर वक्त बस फूड चाहिए होती है. फूड, ऐसा लगता है कि उनकी पूरी जो वजूद है वो बस एक क्या है, वो एक बीक है. बीक माने चोंच, यानी कि उन्हें हर वक्त बस खाना चाहिए. वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 young ones. एक ग्रेन है, एक दाना, और उसने अपने 10 बच्चों को खिलाना है उसे.
To whom the mother sparrow should feed, conjoining beak with beak. अब वो कह रहा है, राइटर खुद कह रहे हैं कि अब बताएं मदर स्पैरो किसको खिलाएगी और किसको ना खिलाए, एक दाना है सिर्फ. So here actually this situation is quite common with the lower class mother of humans also. आप देखें हमारे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि अक्सर फैमिलीज़ में एक बंदा कमाने वाला होता है और जो यंग वंस होते हैं या जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. तो हमेशा जो होते हैं फूड की या दूसरे रिसोर्सेज की हमेशा स्कार्सिटी होती, कमी होती. तो हमेशा मुश्किल होता है कि कौन सी ज़रूरत को पहले और किसकी ज़रूरत को पहले पूरा किया जाए और किसकी ज़रूरत को बाद में. तो सेम क्राइसिस इज़ बीइंग फेस्ड बाय द मदर स्पैरो. To whom the mother sparrow should feed, conjoining beak with beak, with whom should she solace. वो कह रहा है एक बीक से दूसरी बीक इस तरह जुड़ी हुई है, उसको किस बीक को पहले सोलेस देना चाहिए. सोलेस मतलब आराम पहुंचाना, ठीक है. फिशरिंग द एटम. दिस टास्क और दिस डिसीजन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. दैट whom should we feed first. ठीक है, ये इतना मुश्किल है. एक ही दाने को 10 लोगों को खिलाना, एक ही दाने को 10 बच्चों को खिलाना, ऐसा ही है जैसे कि कोई एटम आपको फिशर करना पड़े. एटम क्या होता है बेटा, आपको पता है. आप यू मस्ट हैव बीन फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ एन एटम. एटम इज़ बेसिकली यू कैन से बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का. एटम इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ एनीथिंग. सो एंड दैट इज़ वेरी स्मॉल. इट्स टू स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी थ्रू द नेकेड आइज. आप अपनी आंखों से तो देख भी नहीं सकते, इतना छोटा होता है. और उस छोटे को आपको मज़ीद तोड़ना होता है. फिशर मज़ीद तोड़ना. दिस फिशरिंग ऑफ एटम इज़ quite a difficult or complex process which is done in nuclear physics. So he or the writer is actually metaphorizing the task of feeding 10 young ones with one grain to the fishing of atom. You have learned to weep and wail in a loud tone. बोलते तुम लोगों ने रोना सीख लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना सीख लिया. Splitting the grain. You have learned to set life on foot. Could you split the grain? वो कह रहे तुम चीखते हो, चिल्लाते हो, लाउड टोन में चीखते हो. Splitting the grain कि तोड़ो, दाने को तोड़ो और बता हमें फीड करो. You have learned to set life on foot. अब आपने सीख लिया है कि ज़िंदगी जो है वो किस तरह गुजारनी है, अपने पैरों पे किस तरह खड़ा होना है. क्या आपने ये सीख लिया है कि एक दाने को किस तरह स्प्लिट करना है. 1 grain to be fed to the 10 young ones. एक ही ग्रेन है और आपने 10 बच्चों को उसको खिलाना. यहाँ बेटा सिंबॉलिकली एक मीनिंग ये भी आ सकता है कि इंसानों की दुनिया में, या अभी तो हमने इंडिविजुअल लाइफ्स की बात की थी लोगों की कि कैसे लोग सफ़र करते हैं, उनके पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, स्कार्सिटी ऑफ फूड, स्कार्सिटी ऑफ शेल्टर, स्कार्सिटी ऑफ क्लोथिंग. देयर इज़ लैक ऑफ एवरीथिंग एंड इवन देन दे ट्राई टू मैनेज टू सर्वाइव और कीप सस्टेन देयर फैमिली. लेकिन अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में इसको देखा जाए, एक बड़े पैमाने पे इसको देखा जाए, तो वो कहते हैं यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट. आपने अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीख लिया. क्या आपने दाने को तोड़ना सीख लिया. यानी कि समाज में भी, मुआशरों में भी जो हमारी इनकम होती है या जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, ज़राए हैं, तो यू शुड स्प्लिट देम. आपको उन्हें तोड़ना है. तोड़ने से मुराद है यहाँ पे कि एवरीबडी शुड गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ दैट, so that everybody's need would be get fulfilled. हर शख्स की नीड जो है वो पूरी हो. ऐसा ना हो कि समाज में कुछ लोगों के पास तो इतना ज़्यादा हो, बेतहाशा हो कि उनकी ज़रूरत से भी बहुत ज़्यादा, और बकिया लोगों के पास इतना भी ना हो कि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके. ठीक है, तो वो कहते हैं यू शुड लर्न टू स्प्लिट द ग्रेन so that you could feed everyone within the society. Why? Because 1 grain is to be fed to the 10 young ones. एक ही दाना है और आपने क्या करना है, सबको उससे फीड करना है. सो दिस इज़ व्हाट द अहमद नदीम कासमी इज सेइंग. क्वाइट सिंपल एंड ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय अहमद नदीम कासमी. लेट्स सी द ग्लोसरी. मिलेट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टाइनी स्मॉल, कंजॉइनिंग मतलब ज्वाइनिंग टुगेदर, फिशरिंग मीन्स मेकिंग अ नैरो ओपनिंग और क्रेक, कहने का मतलब है तोड़ना. स्प्लिट ब्रेक करना, तोड़ना. Answer the following question. What does the sparrow hold in her beak? उसकी beak में क्या था? Millet of grain था. Which line is the first that tells us that young ones have no feather?
feather. कैसे पता लगता है कि उनकी feather नहीं है? देखें यहाँ पे लिखा है the young ones are so tiny and small from head to toe they are beaks. कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक समझे गोश्त की बोटी और उनमें बस एक बीक है. तो हमें चौथी लाइन से पता लगता है. How many young ones are to perfect? There are 10 young ones. What has the poet described in the poem? I have just described the poem. You may discuss that. Choose the correct answer. What was the mother sparrow holding in her beak? Millet. The young ones are tiny and small. How many young ones are there in the nest? 10. Name the bird that has come to feed our young ones. Sparrow. Read the poem and write down the missing word in each line. From head to toe, they are beak. The mother sparrow has come to feed. One grain to be fed to 10 young ones. Mark the statements true and false. The young ones are tiny and small. Yes. The mother sparrow holds a grain of rice in her beak. No. The young ones do not weep and wail in a loud tone. No. One grain is to be fed to the 6 young ones. No. एक्सप्लेन द लास्ट थ्री लाइन. ठीक है जी, लास्ट थ्री लाइन में मैंने आपको बताया कि इसको आप सोशल सिनारियो से बिग पिक्चर से कनेक्ट करेंगे और इसके सिंबॉलिक मीनिंग निकालेंगे. राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन किस तरह लिखी जाती है. व्हाट डू यू फील आफ्टर रीडिंग द पोएम? दिस इज योर टास्क. यू हैव टू recollect or you have to write down your feeling. What do I feel after this reading this poem? I feel quite tender and I feel quite impressed by the untiring effort of the mother sparrow, and I am also impressed with the moral lesson which is presented in the very poem, in this very poem. So we are done with the poem number 9, the feet. Tomorrow we will inshallah start poem number 10, that is the hollow man. Until then, Allah Hafiz, take care.